मेरा नाम किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कोटपुरा का मैं जोन प्रधान मंगल सिंह रामपुरा। तो जो अज वालों इसे धरना लाया गया, की कहना चाहोगे? ये साढ़े मसले को पासपोर्ट बारे जो दफ्तर बहुत खराब कर रहा ही, सो इस करके सानू अज धरना लगाना पिया वा। की मसले किन्ने चिर तो पेंडिंग है? ये पेंडिंग कोई साल का पिया, कोई 6 महीने का ही, कोई 4 महीने का ही। ये मसले ही साडे इस करके सानू खज्जल खवारी बड़े कर रहे 2-3 महीनों तो। कभी इधर चल जाओ, कोई आओ कागज लियाओ, कभी यह लियाओ, हार के फिर अज सानू धरना लाना पिया। अज जी मीटिंग हुई है, की आश्वासन दिता फिर? अज जो शर्मा साहब है कोल बह के साढ़े जिन्ने भी मसले सारे हल करते हैं। 8 दिनों के ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ पासपोर्ट घर पहुँच जाएंगे। इस करके फिर हम धरना चुक लिया। नहीं जान बुझ के खज्जल खराब किया? ये जान बुझ के तुहानू पता ही है, जी गलों जो करिंदे रखे आ वो खराब करते, इस करके खज्जल खराबी लोगों की बहुत हो रही है। ये साड़ी जहबंदी आ जाओ कोई नहीं। मेरा नाम जगजीत सिंह कोहाली है, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का मैं जिला आगू हाँ। अज इत्थे आपां धरना दिता वा, 1-2 घंटे ये धरना चलिया वा, क्योंकि इत्थे रिश्वतखोरी दे इत्थे तुहाडे सामने एजेंट घूमते फिरते तुहानू नज़र आउणगे। आ बीबी है बेचारी एक, इहने हुण मैनूं आण के दस्सिया वा, जे 10 मिनट पहलों आ जांदी ते आपां इहदा काम उत्ते जाके करवा दिंदे। साडी मीटिंग होई आ इन्हां दे आरपीओ अफसर जिहड़ा मेन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 30,000 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਵੰਜ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਬੀਬੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਬੀਬੀ 50। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਫੜੇ ਸੀ ਕੋਈ 50,000 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ 30,000 ਵਾਲਾ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫੱਟ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ 20,000 ਦਿਓ 30,000 ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਈਏ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ। ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗੀ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ? ਜਿਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਚੌਥਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਵਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੇਂਜ ਵਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਡਰੈਸ ਵਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ। 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪੈਸੇ। ਆ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਮੋਰਚਾ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। हाँ सर, जो आज किसानों ने बाहर प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण है? उनका 1-2 पेंडिंग केस था तो वो जल्दी आना चाह रहे थे लाइन को बाईपास करके। तो हमने कहा कि आप अपने केसेस भेज दें क्योंकि सिस्टम से लाइन से सब नंबर लग रहे हैं। तो उसमें फिर बेसिकली इतने में बिना पेशेंस के उन्होंने धरने लगा दिए। उनके केसेस सॉल्व हो गए हैं, सॉर्ट आउट हो गया वो सारा इशूज़, दे आर हैप्पी। उनके जितने भी केसेस हमने सारे जितने भी ग्रीवेंसेस है सारे सॉल्व कर दिए। तो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल जो है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट के जरिए चलता है काम, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आती होगी? नहीं, 1-2 हमारे 2 चल रहे हैं। तो हमने ओपन हाउस कर रखे कि कोई बिना अपॉइंटमेंट भी आ सकता है, तो अब तो वो तो है ही। और एक है जो अपॉइंटमेंट से आते हैं। तो अब जो अपॉइंटमेंट वाले लोग आते हैं उनको प्रायोरिटी चाहिए होती है हर जगह, बिकॉज वो लेके आए हैं सिस्टम से। तो उसमें थोड़ा सा कई बार सिस्टम में क्लैश हो जाता है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है।
तो ये उसी का था, बिकॉज उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो वो चाह रहे थे हमारे केसेस पहले हो, और जो दूसरे हैं बेसिकली पुराने जो अपॉइंटमेंट वाले हैं वो चाहते हैं हमें प्रायोरिटी मिले। तो इट वाज समथिंग जो दोनों के बीच हमने सॉर्ट आउट कर दिया बैठ के बातों को, क्योंकि कहना है कि 2 महीने पुराने पासपोर्ट हैं हमारे सब्जी के पास 2 महीने पुराने, हाँ, तो उनके में इश्यूज थे, तो हमने सॉर्ट आउट कर लिए वो सारे बैठ के। अब उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टेज था, जो भी था, जो इंक्वायरियाँ गई हुई हैं, जैसे एक केस में पुलिस के पास उनका जवाब पेंडिंग था, एक में मैंने ओवर रूल किया है केस में जिसमें जब पुलिस जवाब ही नहीं दे रही थी, ठीक है। तो अब जहाँ पे पुलिस के पास पेंडिंग है या किसी और एजेंसी के पास कोई कागज़ पेंडिंग है, तो जब तक हमें जवाब नहीं आता तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते ना। तो हमने लोगों का यह एलिगेशन कि काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रहे हैं कि जैसे इस तरह का मामले। हाँ तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपका, अगर कहीं हमने भेजा हुआ है कि भाई किसी का जवाब नहीं आया है किसी एजेंसी का, तो हमें उसका तो वेट करना पड़ेगा ना। हम लोग भी कई बार हो जाता है अचानक छुट्टी आ जाती है सरकारी, तो उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो जो लोग आते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो पासपोर्ट की ऑफिस की तरफ से कोई सहूलत उनके लिए तो आपने को बना रखा है? किस चीज़ के लिए मैं समझा? जैसे कोई सरकारी छुट्टी अचानक आ जाती है उस दिन की अपॉइंटमेंट में जो लोग जहाँ पर आते हैं, तो उनको हम रीशेड्यूल करते हैं, हम फिर उन्हें सैटरडे को बुलाते हैं, ये करते हैं, उन्हें पहले बता दिया जाता है। तो अगर एकदम आती है, जैसे लास्ट ईयर आई थी एक, तो हमने फिर उनकी सारी रीशेड्यूल कर दी थी सैटरडे को, तो वो हम लोग रीशेड्यूल करते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होने देते, तो वो उस तरीके से चलता है पूरा का। ठीक है, ओके।